إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معزز علماء کرام، محترم سامعین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، نوجوان احباب، اللہ کے فضل و کرم سے، اسی کی عنایت، اسی کا لطف کرم، اسی کی مہربانی الرحمن الرحیم، اس نے توفیق دی اس گھر میں جو ہمارے آباء و اجداد کی بہت ساری یادوں کو سمیٹے ہوئے ہے، جہاں بیٹھنے کے بعد تاریخ کے بہت سارے واقعات یاد آتے ہیں. ہم ایک بار پھر اکٹھا ہوئے. دو تقریریں ہم نے سنی ہیں، جس تقریر نے ہمیں تاریخ کے اوراق کو الٹ دیا ہے ہمارے لیے. بہت ساری چیزیں جو ہم نے اپنے اکابرین کے ساتھ بیٹھی اور سنی تھی، اور جو وعدے انہوں نے لیے تھے، وہ آج یاد آتے ہیں. اور حقیقت میں زبان ساتھ نہیں دیتی. کہوں تو شاید ریاکاری میں نہ چلا جائے، ڈر ہے اس بات کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں اپنے شیخ محترم سے، اپنے ساتھی حبیب سے جو باتیں ہم نے سنی، یہ بہت کافی ہماری اس تاریخ کو یاد کرانے کے لیے. یہیں سے کتاب و سنت کا وہ قافلہ ہمارے آباء و اجداد نے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھایا تھا. اسی تعلق سے ہم نے آیت کریمہ بھی پڑھی ہے. میرے بھائیوں، کس موضوع پر کہاں سے گفتگو شروع کی جائے؟ سب سے پہلے تو دعا ہی کرنی چاہیے اپنے ان اسلاف کے لیے. حقیقت میں جن کے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ان کے اخلاص، ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج ہم اسی توحید پر، کتاب و سنت کے اسی منہج پر، اللہ کے اسی دین پر قائم اور باقی ہیں، جو حقیقی دین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے، اور جس کی حفاظت پوری امت کے اوپر آپ نے چھوڑی تھی.
ये कहा था तस्माऊन व युस्मा मिनकुम व यस्मा अल्लज़ीना तस्माऊन व युस्मा मिनकुम व युस्मा मिनल लज़ीना तस्माऊन मिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा से कहा था कि आज तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, मुझसे अल्लाह की बातें सुन रहे हो, कुरान की आयत सुन रहे हो, अल्लाह के अहकाम बयान कर रहा हूँ उसको तुम सुन रहे हो, अपने दिलों में तुम इन सारी चीज़ों को महफूज कर रहे हो। और एक वक्त आएगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तुम ही रहोगे, तुम ही इस दीन के वारिस बनोगे और तुम इस वरासत को, दीन की इस वरासत को, अल्लाह के इल्म की इस वरासत को अपने बाद वालों तक पहुँचाओगे। वो लोग तुम्हारी जुबानों से सुनेंगे अल्लाह के दीन को, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के अहकाम को। मर्द औरत सब, साहबा और साहबियात जिनको कहा जाता है, उनसे कहा कि तुम सुनोगे और तुम अपने दिलों में महफूज करोगे, अपने अमाल से लोगों को बतलाओगे और इसके बाद तुम्हारे जो बाद आएंगे वो तुमसे सुनेंगे, वो अपने दिलों में महफूज करेंगे तुम्हारी हमारे तौहीद की दावत को और दीन की शरीयत की इन बातों को वो अपने दिलों में महफूज करेंगे, वो अपने बाद वालों तक पहुंचाएंगे। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा और चलता रहेगा। अल्लाह ताला इस दीन को ऐसे ही दीन पर, सच्चे दीन पर अमल करने वालों के जरिए बाकी रखेगा यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारा इस बात पर यकीन है, पूरे यकीन, ईमान, जो शेख ने कहा यकीन मुहक्कम के साथ हम आज भी कहते हैं इंशाअल्लाह जमात क़यामत तक बाकी रहेगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से पेशिन गोई है और आपकी बात इन व इल्ला वही यूहा, अल्लाह की बात है। आपने कहा था हाँ, ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम वला मन खालफहुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। एक ग्रोह, तमाम ग्रोह दुनिया में मुसलमानों के दरमियान, गैर में नहीं कहा, मुसलमान जिनको जो अपने आप को कहेंगे, उन मुसलमानों के दरमियान हर जमाने में मुख्तलिफ जमातें पैदा होंगी, मुख्तलिफ तरीक़े पैदा होंगे, मुख्तलिफ खानकाहें पैदा होंगी, मुख्तलिफ सिलसिले चलेंगे, मुख्तलिफ लोगों की तरफ मंसूब किया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन सबके बीच में एक जमात अल्लाह वाली कायम रहेगी, एक जमात अल्लाह वाली कायम रहेगी और बराबर इसी पर मौजूद रहेगी, डटी रहेगी। कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम वला मन खालफहुम। चाहे उनका साथ देने वाला उनका साथ छोड़ दे और चाहे उनकी मुखालफत करने वाले मुखालफत करें। दो बात आपने कही थी, दोनों बात आपने अभी तारीख की रोशनी में सुनी। मुखालफत की गई तक़वियतुल ईमान, जब तक़वियतुल ईमान छपी और उसके खिलाफ जब तहरीक चलाई गई, मुखालफत वाली तहरीक चलाई गई। वो लोग जिन्होंने तक़वियतुल ईमान को कबूल किया एक धड़े थे, तौहीद वाले, लेकिन जब किताब और सुन्नत की बात आई तो इनका साथ छोड़ा तकलीद वालों ने। ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम वला मन खालफहुम। दोनों दो फिरके आपने इशारा किया, एक वो फिरका होगा जो उनकी मुखालफत करेगा और एक वो फिरका होगा जो उनका साथ देने से भाग जाएगा। लेकिन ये दोनों फिरके उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। वो चाहे दुनिया में सबसे कम हो, चाहे उनके पास ताकत सबसे कम हो, चाहे उनके वसाइल सबसे ज्यादा कम हो, चाहे दुनिया में उनको सबसे ज्यादा कमजोर कहा जाए, लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ होगी, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। हत्ता याति वअदुल्लाह, और क़यामत तक कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा यकीन मुहक्कम इस बात पर मेरे भाइयों, और यही मीरास हमारे असलाफ हमको देकर गए। वो मीटिंगे मेरे भाइयों आज भी हमको याद है, जो इसी घर में बैठकर हमारे असलाफ करते थे। किस लिए? जिस जामिया की दरो दीवार को आज हम देख रहे हैं। हमने इसके लिए क्या किया है? हमारे शेख ने बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें याद कराई, लेकिन हमने क्या किया है? जिन्होंने किया हमारे आबाजदाद ने, अल्लाह ने उनके बारे में पहले ही गवाही दे दी, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। मोमिनीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जमाने में ऐसे लोगों को पैदा करता रहेगा, मोमिनीन ही में से, अहले ईमान ही में से, जो लोग ईमान वाले अपने आप को कहेंगे, उन्हीं में से अल्लाह रब्बुल आलमीन
हर जमाने में ऐसे लोगों को पैदा करता रहेगा। सदाकु मा अहदुल्लाह अलैहि, अल्लाह से वादा किया है कि किताब और सुन्नत को बाकी रखा जाएगा। अल्लाह से वादा किया है कि तौहीद को इस जमीन में नाफिज करके छोड़ा जाएगा। उस वादे पर वो कायम रहेंगे। सदाकु मा अहदुल्लाह अलैहि, इस वादे को उन्होंने सच कर दिखाया। देखो उस जामे सुल्फिया को जहाँ तक़वियतुल ईमान पढ़ाई जाती है, और तक़वियतुल ईमान पढ़ाई जाने ही की वजह से न तो अहले तकलीद और न ये मज़ारात वाले उसमें दाखिल होने को भी जायज़ नहीं कहते। कितने हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि कितने तलबा से जामिया सल्फिया से हटाया गया, कितने तलबा को ये कहकर कि देखो ये तो बहके हुए लोग हैं, कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा को न मानो। मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाइयों, एक बात और आपको ज़िम्मन बता दूं, आज लोग कहते हैं कि तकलीद इमाम अबू हनीफा की जाती है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ हनफी फ़िक़्ह की तकलीद की जाती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तकलीद की बात नहीं की है, और न वो फ़िक़्ह जिसमें तिलाक सलासा और दूसरी जो चीज़ें बयान की जाती हैं, न इमाम साहब से सही तौर पर मंसूब साबित की जा सकती है। जिस फ़िक़्ह को आज माना जा रहा है, उसकी तकलीद को वाजिब कहा जा रहा है, वो हनफी फ़िक़्ह है, जो बाद में, जिसमें एक बड़ा हिस्सा बाद में तफ़रीआत के जरिए मुरत्तब किया गया है, जिसकी निस्बत इमाम साहब की तरफ हरगिज साबित ही नहीं की जा सकती। बल्कि इमाम साहब ने जो उसूल दिया या चीज़ें बताई, उसमें से छांट छांट कर अपने मन के मुताबिक, शहवात के मुताबिक, इसलिए सलफ कहते थे मेरे भाइयों। फिर एक बात याद आ गई, सलफ कहा करते थे इस उम्मत की गुमराही के दो वजूहात सबसे बड़े हैं। एक, पहला नंबर शुबहात, दूसरा नंबर शहवात। पहला नंबर शुबहात, दूसरा नंबर शहवात। शुबहात कुरान से पैदा किया जाता है, शहवात इत्तिबा सुन्नत से निकाल कर पैदा किया जाता है। ये दो उम्मत की गुमराही के सबसे बड़े सबब। तो मैं कह रहा था कि ये वो मरकज हमारे आबा अजदाद ने कायम किया, जिनके बारे में अल्लाह ताला कहता है सदक़ु मा अहदुल्लाह व मिनहुम मन यंतज़िर। वहां खत्म नहीं हो गया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। उन्होंने दावत, किताब सुन्नत की दावत, तौहीद की दावत का मरकज कायम कर दिया। उन्होंने हमें दे दिया जो कुछ उनको देना था, इस दुनिया से चले गए, अपनी बात पूरी कर दी। अल्लाह से क्या वो वादा पूरा कर दिया। अल्लाह ताला इन सबको करवट करवट जन्नत नसीब करे और हम सबको इस लायक बनाए, हमें इस बात की तौफीक दे कि हम भी उनकी मीरास को बाकी रखकर उसकी हिफाजत करके उनके साथ हम भी जन्नत में इकट्ठा हो जाए। रब्बुल आलमीन उन्हीं के साथ हम सबका, अपने सिद्दीकीन और शुहदा के साथ हम सबका हश्र फरमा। सदक़ु मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु। इन्हीं में से वो हैं जिन्होंने पूरा किया, उन्होंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु है शेख, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु। उन्हीं में से वो लोग हैं जिन्होंने अपना हिस्सा तो पूरा कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी। कौन है मेरे भाइयों वो लोग? याद करो मौलाना अब्दुल मतीन साहब को रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा ही थे। इस मस्जिद के खुतबे को लोगों ने कितना याद किया है, जो जिन लोगों ने सुना है, और हमने अपने असलाफ से, अपने आबा अजदाद से उनकी तकरीरें सुनी। सबसे बड़ी चीज जो उनके यहाँ थी मेरे भाइयों, वो तौहीद थी। अल्लाह अकबर। मुझको याद है, दादा ही हम कहेंगे, मौलाना मोहम्मद याहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बुलाया करते थे तलकीन करने के लिए कि बाबू तुमने मदीने से पढ़ा है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तुम्हें इल्म हासिल करने की, किताब सुन्नत का इल्म हासिल किया, तो मेरे पास बैठा करो, कुछ मेरी याद ताज़ा हो। एक मौके पर वो कहने लगे कि बाबू मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी कि जब जितना मुझको याद है, आज तक तौहीद के खिलाफ मैंने कोई काम नहीं किया। अल्लाह अकबर। कहा मुझको नहीं याद है कि कोई ऐसा अमल हमसे हुआ हो जिसमें तौहीद की मुखालफत हुई। शिर्क से नफरत दुनिया की तमाम चीजों से नफरत से ज्यादा है, और दुनिया में जो शिर्क देखता हूं मैं तो दिल जल जाता है। दुआ करो रब्बुल आलमीन से कि इसी तौहीद पर मुझको इस दुनिया से ले जाए और हम सबको जन्नत में इसी तौहीद पर इकट्ठा करे।
उनका ये जुमला आज तक नहीं भूला है। मुझसे कहते थे तो मैंने कहा उनसे कि आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको अल्लाह ने नेकी की तौफीक दी है। दुनिया आगे बढ़ेगी, न जाने कितने फितने होंगे। अभी हम लोग दुनिया अभी हमने कितनी देखी है, मालूम नहीं कितने तौहीद के खिलाफ कितने फितने हम देखेंगे। आपको हम सब के लिए दुआ करनी चाहिए। तो कहते थे कि तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि अपने खानदान वालों को बताओ कि तौहीद है क्या, और तौहीद की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम लोगों पर, जिनके आबा अजदाद ने इतना बड़ा किला तौहीद का कायम किया है, उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी क्या है। और अगर किसी ने हमारे खानदान में से तौहीद के खिलाफ कोई चीज या किताब सुन्नत के खिलाफ कोई चीज की तो हम तो उसको माफ नहीं करेंगे। हम अल्लाह के उसको जरूर पकड़ेंगे कि हमारे आबा अजदाद ने कहाँ छोड़ा था और तुम लोग कहाँ चलेंगे। मेरे भाइयों, सोचो कि उनके अंदर क्या जज्बात थे, क्या सोच थी उनकी, और किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी उन लोगों ने गुजारी। वो चीजें याद आती हैं जब हम अपने घर में बैठते हैं। तकरीर तो हम बहुत सुनते हैं मेरे भाइयों, तकरीर करने का मिजाज आज हकीकत में मिजाज नहीं था तकरीर करने का, इसलिए कि हमने बहुत कुछ सुना। सुनने से ज्यादा अमल करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बाअमल उम्मत बना दे, अमल करने की तौफीक अर्जानी फरमा दे। हम जो सुने हकीकत में उस पर अमल करें। जो कुछ सुना है मेरे भाइयों, तारीख के औराक को जब हम लटते हैं और बहुत दूर नहीं, खुद अपने यहाँ की तारीख पढ़ते हैं। मौलाना साहब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह दारा नगर से वो आते थे यहाँ। इन लोगों ने मिलकर तंजीम यहाँ कायम की थी। सबसे बड़ी तंजीम जो कायम की थी वो कादियानियत के खिलाफ थी, जिसमें मौलाना अब्दुल मतीन मौलाना साहब बनारसी सदर थे और मौलाना अब्दुल मतीन साहब ये सेक्रेटरी थे। कादियानियत के जब यहाँ ज़ुहूर हुआ और कादियानी कुछ मालूम हुआ कि यहाँ कुछ कादियानी चले आए। कादियानी किनको कहते हैं जानते हैं मेरे भाई? थोड़ा सा वो भी बता दो। कादियानियों में हम लोगों में सबसे बड़ा फर्क है कि कादियानी मुसलमान नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान जरूर कहते हैं। उनका हमारा इख्तिलाफ नबूवत के मसले पर, रसूल की रसालत पर जिस तरह ईमान लाना जरूरी है, उसी तरह इस बात पर भी ईमान लाना जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद नबूवत का खात्मा हो गया। अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। और जो आदमी नबूवत का दावा करे वो झूठा दज्जाल है, और जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न माने वो मुसलमान नहीं है। जिस तरह आपके नबूवत पर ईमान लाना वाजिब है, इसी तरह आपके आखिरी नबी होने पर ईमान लाना वाजिब है। अगर इसको कोई नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं है। कादियानी इसी को नहीं मानते, वो आपको रसूल मानते हैं। कहेंगे जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि हम भी तो मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मानते हैं, जरूर नबी मानते हैं, लेकिन आपको आखिरी नबी नहीं मानते। आपके बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को, जिसको अंग्रेजों ने पूरी पुष्पराही दी थी इस मुल्क में मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करने के लिए, उसको रसूल मानते, नबी मानते, और ये सिलसिला उनके है। ये फितना कादियानियत का जब बनारस में आया और मौलाना साहब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह को इसकी खबर हुई तो उसी पर उन्होंने एक तंजीम कायम की मदनपुरा में। पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और इस तंजीम को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो जिम्मेदारी हमारे आबा अजदाद ने पूरी की। मौलाना अब्दुल मतीन साहब और मौलाना अब्दुल मजीद हरीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला इन सबको गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मेरे भाइयों, अब वो जज्बात याद करो, वो जज्बात याद करो। अल्लाह ने उनको भी माल दिया था और हमको भी कहीं छोड़ा नहीं है। अल्लाह ने दिया है और वादा किया है और सीधे सीधे कहा है, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। कहाँ तलाश करते हो रोजी को? रोजी तलाश करना यहाँ तलाश करो जो आबा अजदाद छोड़ कर गए हैं। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्ती वाले अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के इस ईमान की हिफाजत के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह पर इस ईमान की हिफाजत के लिए तैयार हो जाएं, तक़वा तहारत की जिंदगी इख्तियार करें, ये अहद कर लें कि तौहीद और किताब सुन्नत की दावत को जो हमारे आबा अजदाद ने हमारे दरमियान छोड़ी है, ऐसे ही हिफाजत करेंगे जैसे उन्होंने हिफाजत की थी।
लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतों के तमाम दरवाजे खोल देंगे। सिर्फ रोज़ी ही नहीं, जायदाद ही नहीं, हर किस्म की मुश्किलात, ये जो वायरस आ रहा है, ये बीमारियां जो आ रही हैं, ये सब से छुटकारे की जो बरकतें अल्लाह के यहाँ है, सारी बरकतें आपके पास होंगी। दुनिया कुछ नहीं कर सकेगी। जो शहर से निकालने वाले हैं ये भी मर जाएंगे। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई, लेकिन अल्लाह का वादा मशरूत है। शेख ने जो बयान किया, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ, करना होगा आपको। ये देखकर नहीं कि जमात बहुत छोटी सी, ये देखकर नहीं कि हमारे वसाइल कम है। अल्लाह ने आपको जितना नवाजा है उतनी जिम्मेदारी दी है। अल्लाह ने आपको जितना नवाजा है उतनी जिम्मेदारी दी है। इसी शहर में, मैंने अभी शेख से कहा, इसी शहर में अल्लाह का शुक्र है आप ही के दरमियान वो लोग भी हैं जिन्होंने पूरी पूरी जमीन दी है मस्जिद बनाने के लिए, जिन्होंने पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाई है उस मस्जिद को पूरे तौर पर बनवाने की भी। तो क्या ये जज्बा हमारे अंदर नहीं आ सकता है? अगर ये जज्बा नहीं है तो फिर अल्लाह का वो फरमान जो आगे, उसका क्या करेंगे? वह मिनहुम मन यंतज़िर, उसका क्या करेंगे शेख? एक तरफ वो मोमिनीन है जिन्होंने अपना वादा तो पूरा कर दिया, दूसरी तरफ एक तबका वो भी है जो अभी इंतजार कर रहा है, लाइन में लगा हुआ है कि हमको मौका मिले तो हम भी कुछ कर जाएं। अब हम और आप उसी लाइन में हैं, हम आप इस दुनिया में अब उसी लाइन में लगे हुए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस लाइन को हम पूरा करें, इसमें जो खला है उसको दूर करें, अपने दरमियान के इख्तिलाफ को खत्म करके ये जो लाइन हमें दे दी गई है किताब और सुन्नत तौहीद की हिफाजत की, इस लाइन को हम मजबूत करें। इसलिए कि हमने अल्लाह से वादा किया है, वमा बद्दलू तब्दीला, ये हमारा वादा है अल्लाह से। अगर इस वादे को हम नहीं मानते तो मेरे भाइयों अपने आप को अहले हदीस कहने का हक नहीं है। वहाँ बद्दलू तब्दीला, अल्लाह ने जो अहद पैमान लिया इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, ये वादा किया है हमने अल्लाह से। उन लोगों ने जो किया उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, और बाद वालों ने ये अहद किया अल्लाह से कि हम भी उसको पूरा करेंगे, निभाएंगे, इसमें हम तब्दीली नहीं करेंगे। तब तो उस पर कायम है, नहीं तो कायम नहीं रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अरदानी फरमा दे, हमको सही माने मुसलमान बनाए, कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अरदानी फरमाए। रब्बुल आलमीन तू हर तरह से हमारी हिफाजत फरमा, हर फितने से हमें महफूज फरमा दे, हर मुश्किलात से हमें महफूज फरमा दे, दुश्मनों के मकर फ़रेब से हमें महफूज फरमा दे, दुश्मनों के जुल्म ज़्यादती से हमें महफूज फरमा दे। रब्बुल आलमीन तू हमारी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमारे इदारों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमारे इबादत गाहों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमारे माल जान की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमारा महफिज बन जा। रब्बुल आलमीन तू ही हमारा मलजा व मावा है, तेरी आगे हम हाथ फैलाते हैं, तुझको रहमान और रहीम कहकर पुकारते हैं। रब्बुल आलमीन तू अपनी रहमत तो करम से, अपने लुत्फ़ इनायत से हमें ढाप ले, तू हमारा बन जा, तू हमारा महफिल बन जा। इस जुल्म ज़्यादती के दौर में रब्बुल आलमीन हमको अकेला न छोड़। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।